Hello everybody, welcome back to English classes by Mukhtar sir. I'm back. No doubt I'm back after a long time, but I'm back and back with altogether a new topic. Today I'm gonna talk about voice. Let's talk about voice. I have taken this topic from your grammar portion. It's meant for the students of 11th and 12th classes. Okay, fine. Let's talk about voice. What is voice? How to define voice? What do we mean by voice? What is referred to as voice? The first thing that I will be telling you people is that in grammar, the voice of a verb means or describes the relation of the verb itself with its counterparts like the subject and object. I mean, in grammar, voice of a verb describes its relation with subject and object. Hence, in grammar, what do we refer to as voice? What do we mean by voice? In grammar, what does voice do? What is the function of voice? In grammar, voice of a verb, that is the voice of a verb, describes its relation, shows its relation with subject and object. Voice of a verb tells us what is the relation of a particular verb with its subject and object. And that particular thing, this is the function of, I can say this is the function of voice. What does voice do? It describes the relation, that is, it shows the relation. It tells us what is the relation of a verb itself with the subject and the object, with the subject of the verb and the object of the verb. We will talk about it in detail, but before moving over to this, I'll define voice. What do we mean by voice? What is voice? Voice is altogether nothing, but voice is the state of verb. Voice is, how to define voice? Voice is the state of a verb, that shows, whether the subject acts or is acted upon. Hence, how to define voice? We define voice like this. Voice is the state of verb that shows whether the subject acts or is acted upon. वॉइस को अगर डिफाइन करना हो, वॉइस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वॉइस को हम कहते हैं इट इज द स्टेट ऑफ वर्ब. ये वर्ब की एक स्टेट होती है दैट शोज, जो हमें दिखाती है वेदर द सब्जेक्ट, कि जो हमारा सब्जेक्ट है एक्ट्स, वो काम कर रहा है, इज द सब्जेक्ट परफॉर्मर, सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और इज एक्टेड अपॉन, या उस सब्जेक्ट पे ही एक्शन हो रही है. हालांकि इन ग्रामर हम हमेशा ये देखते हैं, हमने ये जाना है, ये पढ़ा है कि सब्जेक्ट ऑलवेज हैपेंस टू बी द परफॉर्मर ऑफ एक्शन, बट दैट्स नॉट द केस. जहां तक वॉइस का ताल्लुक है, जब हमने वॉइस को डिफाइन किया, हमने कहा इट इज द स्टेट ऑफ अ वर्ब. बाय स्टेट ऑफ वर्ब वी मीन अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. स्टेट ऑफ वर्ब से क्या मतलब है? वर्ब की एक अलामत, वर्ब की ऐसी सूरत हाल, वर्ब की एक मखसूस फॉर्म. तो हमने कहा द स्टेट ऑफ अ वर्ब, यानी वर्ब की एक मखसूस फॉर्म, एक ऐसी फॉर्म दैट शोज, जो हमें दिखाती है वेदर द सब्जेक्ट, कि क्या जो हमारा सब्जेक्ट है एक्ट्स, क्या वो सब्जेक्ट काम कर रहा है, और इज एक्टेड अपॉन, या उस सब्जेक्ट पे ही काम हो रहा है. सो ये दो चीजें जो स्टेट हमारी वर्ब की दिखाएगी, वर्ब की जो पर्टिकुलर फॉर्म हमें बताएगी कि सब्जेक्ट काम कर रहा है, वर्ब की ऐसी फॉर्म को भी हम वॉइस कहते हैं. और ऐसी फॉर्म, ऐसी स्टेट वर्ब की जो बताएगी कि वर्ब सब्जेक्ट पे ही काम हो रहा है, सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है बल्कि सब्जेक्ट पे ही काम हो रहा है, इसे भी वॉइस कहते हैं. हेंस
हेंस वॉइस किसे कहते हैं? यह वर्ब की एक मखसूस फॉर्म होती है, वर्ब की एक मखसूस स्टेट होती है। इट इज अ स्टेट ऑफ वर्ब, ए पर्टिकुलर स्टेट ऑफ वर्ब। यह वर्ब की एक मखसूस स्टेट होती है दैट शोज अस, जो हमें बताती है वेदर द सब्जेक्ट एक्ट्स, कि क्या हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा है, और इज एक्टेड अपॉन, या हमारे सब्जेक्ट पे ही काम हो रहा है। एग्जाम्पल्स के जरिए इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि जब हमने कहा इट इज द स्टेट ऑफ वर्ब, की वर्ब की एक ऐसी स्टेट होती है दैट शोज, जो हमें दिखाती है वेदर द सब्जेक्ट एक्ट्स और इज एक्टेड अपॉन, कि क्या सब्जेक्ट काम कर रहा है या सब्जेक्ट पे काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ही एट फूड। In this very particular line, in this very particular example, we have got he is the subject, it is the finite verb, and food is the object. Okay, fine. This is a sentence. ये एक sentence है। अब अगर आपसे पूछा जाए इस sentence की voice बताओ कि यहाँ पे वॉइस कौन सी है, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि क्या वॉइस है यहाँ पे, क्या यहाँ पे वर्ब की एक ऐसी स्टेट है जो हमें बताए कि सब्जेक्ट काम कर रहा है, या जो हमें बताए कि सब्जेक्ट पे ही काम हो रहा है। क्या ऐसी कोई फॉर्म है यहाँ पे वर्ब की? हाँ, वी हैव गॉट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एट, फिनाइट वर्ब एट। हमारे पास फिनाइट वर्ब एट है। ही एट फूड, ही ने खाना खाया। दिस पर्टिकुलर एट शोज दैट दिस एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट ही। ये जो वर्ब की फॉर्म है ये बताती है कि सब्जेक्ट ही काम कर रहा है। तो हम कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है यहाँ पे वर्ब की, ये हमें वॉइस दिखाता है। ओके, अनदर एग्जांपल, मैं एक और एग्जांपल लिखूंगा। फूड वाज ईटन बाय him. Now we have got another example, and this very particular example reads like this: food was eaten by him. Okay, fine, whatever. We have got the form of verb, the state of verb, was plus eaten, an auxiliary plus third form of verb. It is a verbal phrase, I can say. Okay, अब जो ये verb form हमारे पास है, इसका काम क्या है, यहाँ पे क्या करता है? This particular form tells us, shows us, ये हमें दिखाती है, indicates that the subject, की जो यहाँ पे subject है, this subject is not performing this action. ये जो action है ये subject नहीं करता है, और is not performed, या इसने नहीं की है, बल्कि ये जो सब्जेक्ट है इज एक्टेड अपॉन, ये जो एक्शन है इसी सब्जेक्ट पे हुई है। तो वर्ब की ऐसी स्टेट को जो बताए कि सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, यानी सब्जेक्ट इज द परफॉर्मर, या वर्ब की ऐसी स्टेट जो बताए कि एक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट इज द रेसिपिएंट, जो हमें बताए कि सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, या जो हमें बताए कि सब्जेक्ट रिसिपिएंट है, यानी सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर है, सब्जेक्ट पे ही एक्शन हुई है। ऐसी स्टेट्स को वर्ब की हम वॉइस कहते हैं। सो अब हमारे पास दो स्टेट्स है वर्ब की, दो फॉर्म्स हैं। एक ऐसी स्टेट जो बताए कि सब्जेक्ट काम कर रहा है, और दूसरी ऐसी स्टेट जो बताए कि सब्जेक्ट पे काम हो रहा है। इन दोनों ही स्टेट्स को हम वॉइस कहते हैं। लेकिन ये जो स्टेट है हमारे पास, एक ऐसी वर्ब की ऐसी स्टेट, वर्ब की ऐसी पर्टिकुलर फॉर्म, मखसूस फॉर्म, जो बताए कि सब्जेक्ट इज द परफॉर्मर, सब्जेक्ट काम कर रहा है। वर्ब की ऐसी स्टेट को, वर्ब की ऐसी फॉर्म को एक्टिव वॉइस कहते हैं, एक्टिव वॉइस। और वर्ब की जो ये वाली स्टेट है हमारे पास, जो बताती है कि सब्जेक्ट इज नॉट द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, रादर इट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, कि यहां पे जो सब्जेक्ट है जो एक्शन नहीं कर रहा है बल्कि इसी पे एक्शन हो रही है। तो वर्ब की ऐसी स्टेट को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। अब हमारे पास वॉइस दो तरह की है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यानी वर्ब की दो मखसूस स्टेट्स हैं जो हमें वॉइस दिखाती हैं। एक ऐसी स्टेट जो बताए कि सब्जेक्ट काम कर रहा है, और ऐसी स्टेट को वर्ब की जो बताए कि सब्जेक्ट काम कर रहा है हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। दूसरी वर्ब की ऐसी स्टेट है जो बताए कि सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है बल्कि सब्जेक्ट पे ही काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल नंबर 2, अगर आप इस एग्जाम्पल नंबर 2 को देखो, फूड वॉज ईटन बाय हिम, खाना खाया गया उससे। खाना, ये जो खाना है इसने खाने का काम नहीं किया है, बल्कि जो खाने का काम है इसी खाने पे हुआ है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये एक्शन नहीं कर रहा है बल्कि इसी पे एक्शन हो रही है। तो ऐसी स्टेट को वर्ब की हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अब हमारे पास वर्ब की दो स्टेट्स हैं।
एक तो ऐसी स्टेट वर्ब की जो बताए कि सब्जेक्ट काम कर रहा है, ऐसी स्टेट को हमने एक्टिव वॉइस कहा, और वर्ब की दूसरी स्टेट जो बताए कि सब्जेक्ट पे काम हो रहा है, ऐसी स्टेट को हमने पैसिव वॉइस कहा। वॉइस किसे कहा हमने, मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, इट इज स्टेट ऑफ वर्ब, ये वर्ब की एक पर्टिकुलर फॉर्म होती है, एक मखसूस फॉर्म होती है, दैट शोज, जो हमें बताती है, जो हमें दिखाती है, वेदर द सब्जेक्ट एक्ट्स, कि क्या हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा है। अगर काम कर रहा है तो ऐसी स्टेट को वर्ब के हम कहेंगे एक्टिव वॉइस, AV, या वर्ब की ऐसी फॉर्म दैट शोज वेदर द सब्जेक्ट एक्ट्स और इज एक्टेड अपॉन, या जो बताए कि सब्जेक्ट पे ही काम हो रहा है, एक्टेड अपॉन, एक्टेड अपॉन, जो बताए कि सब्जेक्ट पे ही काम हुआ है, ऐसी वॉइस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं, PV। अगर हमारा सब्जेक्ट एक्ट कर रहा हो, वेदर द सब्जेक्ट एक्ट्स, अगर एक्ट कर रहा हो, वर्ब की ऐसी फॉर्म जो बताए सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, हम उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। वर्ब की ऐसी फॉर्म जो बताए सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन, सब्जेक्ट पे काम हुआ है, इज कॉल्ड पैसिव वॉइस, इसे पैसिव वॉइस कहते हैं। हेंस वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस कहते हैं स्टेट ऑफ वर्ब को जो बताए कि वेदर द सब्जेक्ट एक्ट्स और इज एक्टेड अपॉन, हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा है या हमारे सब्जेक्ट पे ही काम हो रहा है। और अगर एग्जाम्पल ऐसी हो, वर्ब की फॉर्म ऐसी हो कि वो दिखाए कि सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। और अगर वर्ब की स्टेट, वर्ब की फॉर्म ऐसी हो, वो बताए कि सब्जेक्ट पे काम हुआ है, तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। अब यहां पे क्या होता है, what we are supposed to deal with is the fact that we are sometimes at times asked to change voices, हमें voices change करने के लिए कहा जाता है। For example, suppose you are asked to change a statement of active voice, आपसे कहा जाएगा कि एक सेंटेंस को जो एक्टिव वॉइस में है चेंज करो, कन्वर्ट करो, रिपोर्ट करो, चेंज इनटू स्टेटमेंट ऑफ पैसिव वॉइस, एक ऐसे स्टेटमेंट को चेंज करो जो एक्टिव वॉइस में है, इनटू स्टेटमेंट ऑफ पैसिव वॉइस, यानी वॉइस चेंज करो, एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में चेंज करो। तो ये जो फिनोमेनन है ये हमें करना होता है हमारे एग्जाम में, या वॉइस वर्सा कहा जा सकता है, यानी आपसे कहा जाएगा एक स्टेटमेंट पैसिव वॉइस में है, इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करो। दिस इज द एक्चुअल थिंग दैट वी आर सपोज टू डील विद, ये है असल चीज जिसके साथ हमें डील करना है, जो हमें देखना है, जो हमें पढ़ना है, कि कैसे हम एक स्टेटमेंट को एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, या कैसे पैसिव वॉइस को चेंज किया जा सकता है एक्टिव वॉइस में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। ख्याल रहे, once again I'm bound to tell you people the fact that this again is a pretty lengthy topic, hence I will be dividing it into parts, मैं इसे parts में divide करूंगा, and this very particular part, name it part first, that's introductory part, इस part को part first कहो, यहाँ पे मैं इस topic के बारे में introduction दूंगा। तो खैर अभी तक हमने डिफाइन किया वॉइस को, हमने देखा कि हमारे पास दो तरह की वॉइसेस हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वर्ब की ऐसी स्टेट जो बताए सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, पैसिव वॉइस वर्ब की ऐसी स्टेट जो बताए कि सब्जेक्ट एक्ट नहीं कर रहा है बल्कि सब्जेक्ट पे ही एक्ट किया जा रहा है। एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है एक्टिव होता है, यानी वो अपना काम कर रहा होता है, वो परफॉर्मर होता है। पैसिव वॉइस में, पैसिव का मतलब ही है साइलेंट, पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है साइलेंट होता है, वो काम नहीं कर रहा होता है, बल्कि इन टर्न अगर हम देखें उसी पे एक्शन होती है, वो एक्शन को रिसीव करता है, वो रिसिपिएंट होता है। एनीवे, तो अब हमने कहा कि हमें क्या करना है इस टॉपिक के साथ, ये जो वॉइस का टॉपिक है, वी आर सपोज टू चेंज अ वॉइस फ्रॉम स्टेटमेंट फ्रॉम वन वॉइस इनटू अनदर। हमसे ये कहा जाता है कि हमसे सपोज किया जाता है हम एक वॉइस को दूसरी वॉइस में चेंज करें। फॉर एग्जांपल एक्टिव को पैसिव में चेंज करें या पैसिव को एक्टिव में चेंज करें। पहले हम बात करेंगे कि कैसे एक्टिव वॉइस को एवी को चेंज किया जा सकता है इनटू पैसिव वॉइस, पीवी, पैसिव वॉइस। क्या इसके लिए कुछ फंडामेंटल्स हैं? एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, चेंज करना है तो कैसे होगा। ओके, एक्टिव वॉइस किसे कहता है मैं रिपीट करूंगा, हालांकि मैंने अभी अभी बताया एक्टिव वॉइस किसे कहता है। मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, आप खुद बोलोगे कि ये कौन सी वॉइस है, एक्टिव या पैसिव। शी किल्ड ए स्नेक। ओके फाइन, शी किल्ड ए स्नेक। इस पर्टिकुलर एग्जांपल को पढ़ो, आप देखो यहां पे जो वर्ब है, स्टेट ऑफ वर्ब है, फॉर्म ऑफ वर्ब है,
क्या ये बोलता है कि सब्जेक्ट काम कर रहा है या ये बोलता है कि सब्जेक्ट पे काम हो रहा है? अगर ये बोलता है कि सब्जेक्ट काम कर रहा है, ये दिखाता है कि सब्जेक्ट परफॉर्मर है एक्शन का, सब्जेक्ट एक्ट्स कि सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस है। और अगर ये बोलता है कि नहीं, सब्जेक्ट एक्ट नहीं कर रहा है, रादर कि सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन, बल्कि सब्जेक्ट पे काम हुआ है, तो ये पैसिव वॉइस है। She killed a snake. She has performed the action of killing. She ने किल करने का, मारने का काम किया है, और किल ही हमें बताता है कि she यहाँ पे परफॉर्मर है। she एक्ट कर रहा है, she इस एग्जाम्पल में काम कर रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, ये वर्ब फॉर्म हमें बताती है, तो ये जो स्टेटमेंट है इज इन एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस में है, ये एक्टिव वॉइस वाला स्टेटमेंट है। अब मैं एक दूसरी एग्जाम्पल लिखूंगा। A snake was killed. ओके फाइन, स्नेक वाज किल्ड। अब इस एग्जाम्पल को पढ़ो और बोलो जो सब्जेक्ट है स्नेक, क्या ये परफॉर्म करता है एक्शन, या रादर एक्शन इसी पे परफॉर्म की गई है, एक्शन इसी पे प्लेस होती है, टेक्स प्लेस। तो देखो आप ये सब्जेक्ट काम कर रहा है या नहीं। स्नेक वाज किल्ड, एक सांप को मारा गया, नॉट कि सांप ने मारा है, सांप ने नहीं मारा है, बल्कि यही मारा गया है। सो ये जो मारने की एक्शन है इसी स्नेक पे, इसी सब्जेक्ट पे हुई है। हेंस ये जो स्टेट है वर्ब की was killed, ये हमें बोलता है कि सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन, तो ये है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब हम देखेंगे ऐसी एग्जांपल को, she killed a snake, एक्टिव वॉइस को हम कैसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। क्या इसके कुछ फंडामेंटल्स हैं या नहीं? अगर फंडामेंटल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स, रूल्स वगैरह हैं, तो क्या है? एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे? दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोना डील विद। ये पहली चीज है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। दैट्स हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। कैसे हम एक्टिव वॉइस को रिपोर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। ओके फाइन, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं कि कैसे एवी यानी एक्टिव वॉइस को चेंज करना है इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में, लेट मी टेल यू पीपल कि इस चीज को करने से पहले, इस प्रोसेस, इस टॉपिक को लेने से पहले वी नीड टू नो अबाउट टेंसेस। हमें टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। इन एडिशन टू दैट, उसके अलावा वी नीड टू नो अबाउट द वर्ब फॉर्म्स। हमें वर्ब के फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब्स के बारे में पता होना चाहिए। खैर, तो पहली बात मैं बोलूंगा कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। हर एक एक्टिव वॉइस को हम चेंज कर, हर एक्टिव वॉइस वाले स्टेटमेंट को हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, प्रोवाइडेड कि जो एक्टिव वॉइस हमारे पास है उसमें जो गिवन वर्ब है, दैट वर्ब नीड्स टू बी ए ट्रांजिटिव वन, ट्रांजिटिव वन और ए डाइट्रांजिटिव वन, डाइट्रांजिटिव वन। हमारा जो वर्ब होगा एक्टिव वॉइस में, अगर हमारा वर्ब ट्रांजिटिव या डाइट्रांजिटिव है, तो हर ऐसे स्टेटमेंट को एक्टिव वॉइस वाले पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। तो यहां पे ट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव की हमने बात की, रह गया इंट्रांजिटिव। ख्याल रहे, देयर इज नो पैसिवेशन ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स को हम कभी भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। ये वॉइस किसमें होती है? सेंटेंस की नहीं, ये वर्ब की होती है, ख्याल रहे। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स की वॉइस को हम चेंज कर सकते हैं, डाइट्रांजिटिव वर्ब्स की वॉइस को हम चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो हमारे हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, डू नॉट हैव पैसिवेशन, इनकी पैसिवेशन नहीं होती है, इनकी पैसिव वॉइस नहीं होती है। तो आपको यहां पे वर्ब की टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड डाइट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स आपको पता है कौन से वर्ब्स हैं? ये ऐसे वर्ब्स होते हैं दे टेक एन ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट वन, जो ऑब्जेक्ट लेते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब्स का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। डाइट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स which take more than one, which take two objects, a direct one as well as an indirect one. तो जो ट्रांजिटिव वर्ब्स है, ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका एक ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। डाइट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं। ख्याल रहे, तो ये तो वर्ब्स के बारे में मैंने कहा कि एक्टिव वॉइस को अगर पैसिव में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस को हम पैसिव में तभी चेंज कर सकते हैं जब हमारा वर्ब ट्रांजिटिव होगा या डाइट्रांजिटिव होगा।
ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स की पेशिव वॉइस होती है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब्स की पेशिव वॉइस नहीं होती है, ख्याल रहे। तो हमने बात की कि हम सबसे पहले मैंने आपको कहा इंट्रोडक्शन में कि कब हम एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा वर्ब एक्टिव वॉइस वाला वर्ब ट्रांजिटिव हो या डाई ट्रांजिटिव हो, कैन बी चेंज इनटू पेसिव वॉइस, हैज पेसिव वॉइस। ऐसे वर्ब्स की होती है पेसिव वॉइस। Both the transitive and ditransitive have passive voice, and intransitive verbs do not have passive voice. Intransitive verbs की passive voice नहीं होती है। तो मैं पहले इन verbs के बारे में थोड़ी सी एग्जांपल्स आपको दूंगा। Let's talk about a transitive verb. Transitive verb की बात करेंगे। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगा। He kicked football. Okay, fine. In this very particular example, you can see we have got the verb kicked, we have got the subject he, and we have got the object football. यहाँ पे परफॉर्म कौन कर रहा है एक्शन को? ही कर रहा है। एक्शन कौन सी हो रही है? किक करने की। हो किस पे रही है? फुटबॉल पे। Hence football is the object. ये फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। इस पे एक्शन टेक्स प्लेस। The action परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट है। यहां पे जो एक्शन सब्जेक्ट परफॉर्म करता है टेक्स प्लेस ऑन दिस फुटबॉल, वो एक्शन हो रही है वाका इस फुटबॉल पे। हेंस दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। और ये जो वर्ब यहां पे है किक्ड, जरा देखो इसके बाद ऑब्जेक्ट है, इसने एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऐसे वर्ब्स को ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स की एक एग्जांपल देखेंगे। बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स परिंदे उड़ते हैं। उड़ने की एक्शन किस पे हो रही है? डज दिस वर्ब फ्लाई हैज एन ऑब्जेक्ट? क्या ये जो वर्ब फ्लाई यहां पे है इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है? अगर इसका ऑब्जेक्ट होता तो हम इसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे वर्ब्स, इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इट डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट और ए डायरेक्ट वन, ये ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। या कभी कभार इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऑब्जेक्ट लेते हैं लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। यहां पे तो ये लेता ही नहीं है ऑब्जेक्ट, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्योंकि यहां पे जो एक्शन हुई है, बर्ड्स कर रहे हैं एक्शन, लेकिन एक्शन हो किस पे रही है नहीं पता हमें। ये किसी चीज पे वाक़ा नहीं हो रही है ये एक्शन, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है इस वर्ब का। तो ये जो वर्ब है ये है इंट्रांजिटिव वर्ब, ITV। ये जो वर्ब यहां पे हमारे पास था किक, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट था तो ये था TV, ट्रांजिटिव वर्ब। यहीं पे मैं एग्जांपल दूंगा डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स की। फॉर एग्जांपल, ही शोड मी a flower. He showed me a flower. ही यहां पे सब्जेक्ट है, काम दिखाने का हो रहा है, लेकिन ये काम दिखाने का किस पे हो रहा है? आप देखो ये मी पे भी हो रहा है, फ्लावर पे भी हो रहा है। एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हमारे पास यहां पे है इस वर्ब के। इसका ऑब्जेक्ट मी भी है, इसका ऑब्जेक्ट फ्लावर भी है। फ्लावर इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ID और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसे भी वर्ब्स हमारे पास होते हैं जिनके दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी। तो ऐसे वर्ब्स जिनके दो ऑब्जेक्ट हो, ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स, DTVs, डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ये शब्द हमारा है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अब वर्ब की तीन टाइप्स हैं आपने देखा। इट्स ट्रांजिटिव वन दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, इट्स एन इंट्रांजिटिव वन दैट डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट और ए डायरेक्ट वन, एंड देन इट इज द डाई ट्रांजिटिव वन दैट टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स, बोथ ए डायरेक्ट एंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में मैं एक और एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैंने कहा इंट्रांजिटिव वर्ब्स का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, या कभी कभार अगर होगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्या मतलब है कि होता नहीं है, और अगर होगा, होता नहीं है वो तो हमने देखा, लेकिन होगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। हम फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ही सेड टू मी। यहां पे जो वर्ब आपके पास है सेड, क्या ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस केस आप यहां पे देखो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। हमें कैसे पता चला यहां पे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है? देखो इसकी रिलेशन इतनी अच्छी नहीं है, इतनी स्मूथ नहीं है इस मी के साथ कि ये मी को डायरेक्टली लेता विदाउट द सपोर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रीपोजिशन। तो मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे नहीं लिख सकता हूं, ही said me।
नहीं, क्यों? क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इट डज नॉट टेक ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। हेंस यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है दिस इज एन इनडायरेक्ट वन, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी स्टेटमेंट को जैसे कि आप नरेशन में अक्सर करते हो, ही सेड टू मी, सेड को आप टोल्ड में चेंज करते हो। नाउ फॉर एग्जाम्पल यू हैव चेंज सेड इनटू टोल्ड, ही टोल्ड, इसके बाद आप टू नहीं लिखते, यू रादर राइट डाउन ही टोल्ड मी। तो ये टू कहां गया? ये टू गायब कैसे हो गया? ये टू इसलिए गायब हो गया क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब था, डिड नॉट टेक ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता था। यहां पे अब हमने इसे ट्रांजिटिव में चेंज किया है, टेक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है तो प्रीपोजिशन टू की जरूरत नहीं थी। हेंस इंट्रांजिटिव वर्ब्स हमारे ऐसे वर्ब्स हैं दैट डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, आर ए डायरेक्ट वन या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। अब वर्ब की तीन टाइप्स है, ख्याल रहे, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड डाइट्रांजिटिव, जिनमें से वर्ब की दो टाइप्स जो हमारे पास है, ट्रांजिटिव और डाइट्रांजिटिव, दोनों की पैसिव वॉइस है। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स है इनकी पैसिव वॉइस नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूं कि आप इसे पैसिव में चेंज करो, आप सबने इससे पहले कई बार ये टॉपिक पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल ही goes to school. If you are supposed to change the voice of this particular sentence or this verb, इस verb की voice को change करो, ये एक्टिव voice में है, जरा पैसिव में इसे change करो, ये पैसिव में change नहीं होगा। Let me tell you people, because the verb given here, जो verb यहाँ पे दिया गया है, is not a transitive or a ditransitive one, but it is rather an intransitive one. ये है एक intransitive verb, intransitive verb है, इसलिए ऐसे verb की पैसिवेशन नहीं होती है। सबसे पहला पॉइंट आपको वॉइस में याद रखना है कि पैसिवेशन होती है, हर एक्टिव वॉइस को हम चेंज कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस को, हर वर्ब को एक्टिव वॉइस वाले हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, सिवाय ऐसे वर्ब्स के जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हो। अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूं कि कैसे चेंज कर सकते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। इसके बाद हम बात करेंगे पैसिव वॉइस को कैसे वाइस वर्सा चेंज कर सकते हैं हम एक्टिव वॉइस में। तो फिलहाल मैंने कहा कि अगर एक्टिव वॉइस हमें पैसिव वॉइस में चेंज करनी है, वर्ब नीड्स टू बी ईदर ए ट्रांजिटिव वन और डाइट्रांजिटिव वन। हमारा जो वर्ब होगा वो होना चाहिए ट्रांजिटिव या डाइट्रांजिटिव। वर्ब हमारा होना चाहिए टीवी और डी ओके फाइन। तो वर्ब की तीन टाइप्स में से दो टाइप्स को हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं और एक टाइप की देयर इज नो पैसिवेशन एंड दैट इज ITV. ITV has got no पैसिवेशन। ITV इंट्रांजिटिव वर्ब्स को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जाता है। फर्स्ट थिंग इंट्रोडक्शन में। सेकेंड थिंग कि अगर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो क्या फंडामेंटल्स है, कुछ क्या प्रिंसिपल्स है, कौन से तरीके हैं, व्हाट आर द मेथड्स दैट वी एम्प्लॉय और एग्जीक्यूट टू गेट दिस जॉब डन, कौन से मेथड्स का हम इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द जॉब डन कि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर लें। Okay, fine. Let's see what are the methods, what are the fundamentals, what are certain principles, rules, etc. मैं एक एग्जाम्पल को यहाँ पे लिखूंगा, एग्जाम्पल को चेंज करते करते मैं साथ साथ में एक एक फंडामेंटल की बात करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यू आर सपोज टू चेंज दिस सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल ही रोट ए लेटर। ख्याल रहे सिर्फ वर्ब के बारे में जानकारी नहीं चाहिए इस टॉपिक वॉइस को पढ़ने के लिए, रादर वी नीड टू नो, वी नीड टू हैव ऑल द काइंड इंफॉर्मेशन अबाउट टेंसेस एज वेल। टेंसेस के बारे में भी सारी और साउंड जानकारी होना जरूरी है। फाइन, वो हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल अगर ये एग्जाम्पल हमारे पास है जहां पे वर्ब की स्टेट ऐसी है, ये बताता है कि सब्जेक्ट काम करता है, हेंस यहाँ पे जो वर्ब है एक्टिव वॉइस वाला है। अब इसे हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, क्या होगा? सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, ख्याल रहे कि यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, फंडामेंटल नंबर 1, प्रिंसिपल नंबर 1, रूल नंबर 1, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस change into subject of the passive voice. Subject, जो एक्टिव वॉइस का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारे पास a letter, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का। हालांकि एक्टिव वॉइस का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पहली चीज जो हमने देखी वो ये है कि
we change the object of the active voice into the subject of the passive voice. जो object होगा active voice का change into the subject of the passive voice. First thing कि ये जो object है ये passive voice के subject में change होगा. Second thing, principle number 2. So अब हमारे पास आया subject. पहले हम subject लिखेंगे passive voice का, लेकिन ये subject कहां से आएगा? Remember, we change the object of the active voice into the subject of the passive voice. Second thing is we need to use an auxiliary verb. हम एक auxiliary verb का इस्तेमाल करते हैं. ये जो auxiliary verb हम इस्तेमाल करेंगे, auxiliary verbs आपने पढ़े होंगे. Is a more was for has a been into does did will will share should can I need to that have to use to. ये सारे हमारे auxiliaries हैं. इन auxiliaries में से एक auxiliary हम employ करते हैं यहाँ पे after the subject के बाद. But ये auxiliary कौन सा होगा? Is a more was for has a been do does did be or will will share should can could whatever. तो कौन सा होगा इनमें से auxiliary? It depends upon the tense. ये tense पर depend करता है. और this active voice, ये जो active voice वाला हमारा sentence है जिससे हम passive चेंज करने जा रहे हैं, यहां पे जो वर्ब है इस वर्ब का टेंस देखने के बाद हम यहां पे एक ऑक्सिलरी इस्तेमाल करते हैं इस सब्जेक्ट के बाद. इसीलिए मैंने कहा टेंसेस के बारे में जानकारी का होना जरूरी है. तो ये तो था कि एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, फर्स्ट थिंग वी चेंज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इनटू सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस. सेकंड थिंग वी यूज एन ऑक्सिलरी वर्ब, हम एक ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करते हैं. एंड द थर्ड थिंग इज दैट प्लस वी चेंज We use third form of the verb. जो verb हमारे पास होगा हम उसकी third form इस्तेमाल करते हैं. यहां पे verb हमारे पास wrote है, इसकी third form written है, so हम इस्तेमाल करते हैं V3 past participle form, यानी third form verb के हम इस्तेमाल करते हैं. Hence it is subject plus auxiliary verb. ख्याल रहे active voice AV और इस AV auxiliary verb में इनको कंफ्यूज नहीं करना. यहां पे जो AV है इसका मतलब है ऑक्सिलरी वर्ब. ओके फाइन. सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का, उसके बाद पैसिव वॉइस का एक ऑक्सिलरी होगा, उसके बाद V3 हम इस्तेमाल करेंगे. V3 हम कहां से लाएंगे? V3 ये जो वर्ब गिवन है, यहां पे वर्ब दिया गया है एक्टिव वॉइस में, ये जो वर्ब है इसी वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं. आफ्टर दिस वी यूज BY by, इसके बाद हम BY by इस्तेमाल करते हैं. एंड आफ्टर दैट इस BY by के बाद वी यूज द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस. हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे. खैर मैं रिपीट करूंगा, सब्जेक्ट कहां से लाया था हमने? एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था वही सब्जेक्ट बनेगा हमारा. इसके बाद ऑक्सिलरी कहां से लाएंगे? इस वर्ब का टेंस देखेंगे, उस टेंस के मुताबिक हम एक ऑक्सिलरी यहां पे लिखेंगे. वो मैं आगे बोलूंगा कि किस टेंस के मुताबिक कौन सा ऑक्सिलरी आएगा. तो फिलहाल टेंस के मुताबिक ऑक्सिलरी, घर से नहीं लाना है ऑक्सिलरी वर्ब. नेक्स्ट की V3 कहां से लाएंगे? जो वर्ब गिवन है इसी की थर्ड फॉर्म. नेक्स्ट BY by हम इस्तेमाल करते हैं. BY by के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं. ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहां से आएगा? ऑब्जेक्ट कहां से आएगा? ख्याल रहे यहां पे हमने सबसे पहला काम कौन सा किया था? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया था. सबसे आखिरी काम जो आपको करना है वो है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज. जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही है यहां पे, ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा. तो ये हमारे 5 फंडामेंटल्स हैं, 5 जनरल प्रिंसिपल्स हैं, जिनके मुताबिक, जिनको मद्देनजर रख के वी गेट द जॉब डन. वी चेंज a statement of active voice into a statement of passive voice. हम एक स्टेटमेंट को एक्टिव वॉइस वाले पैसिव वॉइस वाले स्टेटमेंट में चेंज करते हैं. आई विल रिपीट, हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में पैसिव वॉइस के चेंज किया. सेकंड थिंग, एक ऑक्सिलरी फ्रॉम इज एमर वाज वर हैज एवर बीन डू डज डिड विल वुड शैल शुड कैन कुड मैन नीड दैट हैज यूज्ड में से एक इस्तेमाल कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस के मुताबिक. नेक्स्ट V3, ये जो वर्ब यहां पे रोट दिया गया है इसी की थर्ड फॉर्म. नेक्स्ट BY by इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट ये जो सब्जेक्ट है इसे ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे. अब मैं आपको एक और बात यहां पे बोल दूं कि यहां पे जब हमने इस सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में अगर हम चेंज करेंगे, मैं इसे चेंज करूंगा इस स्टेटमेंट को यहां पे. ए लेटर, जो लेटर हमारा है, चूंकि ये नाउन है तो मैं इस नाउन को वापस लिखूंगा. नाउन चेंज नहीं होता है जब हम इसे ऑब्जेक्ट में से सब्जेक्ट बनाएंगे, या सब्जेक्ट अगर नाउन हो उसे ऑब्जेक्ट बनाना हो, इट डज नॉट अंडरगो चेंज. ये चेंज नहीं होता है, इसमें किसी भी तरह की वेरिएशन नहीं आती है. लेटर नाउन था तो बिल्कुल ऐसे ही मैं इसे वापस लिखूंगा नाउन, लेकिन सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट बना के. लेकिन ख्याल रहे क्योंकि इस नाउन से पहले एक आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल, तो वो इंडेफिनिट आर्टिकल भी मैं वापस लिखूंगा.
ए लेटर। अब हमारा सब्जेक्ट बना ए लेटर। ओके फाइन, तो ऑब्जेक्ट हैज बीन चेंज्ड इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया। सेकंड थिंग, वी हैव गॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहां पे जो टेंस है इस वर्ब का वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब चेंज किया जाता है, वी इधर यूज वाज और वर, ऑक्सिलरीज वाज या वर में से हम एक इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब हमारा आएगा वाज। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो ऑक्सिलरी प्लूरल वर्ब आता। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, तो मैंने इस्तेमाल किया पास्ट सिंपल के लिए वाज, ए लेटर वाज। तो दो चीजें मैंने की, ए लेटर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद ऑक्सिलरी मैंने फिलहाल वाज यूज किया। नेक्स्ट, यहां पे वर्ब हमारे पास है रोट, इसकी थर्ड फॉर्म V3 इस्तेमाल करेंगे। A letter was written. Okay, fine. A letter was written. इसके बाद हम by इस्तेमाल कर लेंगे। by. Okay, fine. A letter was written by. अब ये जो हमारा सब्जेक्ट है ही, इसे हमें ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। अगर ये नाउन हमारे पास था, हमने सब्जेक्ट बनाया, चेंज नहीं आई। यहां पे भी अगर नाउन होता, फॉर एग्जांपल असलम रोट ए लेटर, तो इस असलम को उठा के हम by के बाद लिख देते। ए लेटर वाज रिटन बाय असलम। फॉर एग्जांपल ही की जगह हमारे पास असलम है, तो ए लेटर वाज रिटन बाय के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां से आएगा, एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है, तो असलम को उठा के हम ऑब्जेक्ट बना देते। ए लेटर वाज रिटन बाय असलम। लेकिन यहां पे हमारे पास है सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही। वी हैव गॉट द नॉमिनेटिव केस ऑफ द प्रोनाउन, वी हैव गॉट नॉमिनेटिव ऑफ द सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही। हमारे पास एक प्रोनाउन है ही और ये हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो ही है, अगर इसे ऑब्जेक्ट बनाना है, ख्याल रहे आप इस ही को उठा के इस बाय के बाद में नहीं लिख सकते। ए लेटर वाज रिटन बाय ही विदाउट एनी चेंज आप नहीं लिख सकते। फिर हम क्या करेंगे, वी विल रादर गो फॉर द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ दिस ही। हम इस ही का ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है, तो हम इसे चेंज करेंगे। ए लेटर वाज रिटन बाय हिम। हिम कहां से आया, ख्याल रहे हमने ही को लिखा है ऑब्जेक्ट की जगह, लेकिन ही सब्जेक्टिव केस था। सब्जेक्टिव केस हमेशा सब्जेक्ट एक्ट करता है, तो इसी सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का हमने ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन ले लिया, यानी इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, हिम है, तो ही के बदले हमने हिम लिख दिया। हेंस वी हैव चेंज। इस तरह से हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। ए लेटर वाज रिटन बाय हिम। आप देखो इस स्टेटमेंट को, जो एक्टिव वॉइस वाला था, यहाँ पे वर्ब एक्टिव वॉइस वाला था, तो इसे हमने चेंज किया है पैसिव वॉइस में। कैसे किया, मैं रिपीट करूंगा। फर्स्ट थिंग वी डिड वाज वी चेंज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इनटू सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था ए लेटर, उसे हमने पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया। सो प्रिंसिपल नंबर 1, चेंज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इनटू सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। प्रिंसिपल नंबर 2, यूज एन ऑक्सिलरी वर्ब। एक ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल कर लो। मैंने वाज इस्तेमाल कर लिया, लेकिन आप साथ में लिखना यूज एन ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल नंबर 2, यूज एन ऑक्सिलरी वर्ब बट अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस का वर्ब है उसके टेंस के मुताबिक, यानी अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो टेंस है उसके मुताबिक आपको एक ऑक्सिलरी इस्तेमाल करना है। प्रिंसिपल नंबर 2, तो दो प्रिंसिपल हमने देखे। प्रिंसिपल नंबर 3, यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर लो। प्रिंसिपल नंबर 4, यूज by इस्तेमाल कर लो। प्रिंसिपल नंबर 5, चेंज द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को चेंज करो इनटू ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में। ये हैं हमारे 5 प्रिंसिपल्स, 5 फंडामेंटल्स। लेकिन ख्याल रहे ये जो फंडामेंटल्स हमने पढ़े, ये हमारे 5 जनरल फंडामेंटल्स, ख्याल रहे जनरल प्रिंसिपल्स हैं। इसका क्या मतलब कि हम अक्सर और बेशतर इन प्रिंसिपल्स का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से एक स्टेटमेंट को एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये जो टॉपिक हमारा है वॉइस, इसके लिए हम सिर्फ यही 5 प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे। नो, इसके बाद आएंगे नंबर ऑफ एक्सेप्शनल प्रिंसिपल्स। इसके बाद एक्सेप्शंस हमारे पास हैं। एक्सेप्शनल प्रिंसिपल्स यानी एक्सेप्शंस के लिए अलग अलग प्रिंसिपल्स हमारे पास हैं। तो ये तो जनरल थे जो हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आप देखोगे आगे एक्सेप्शनल प्रिंसिपल्स, स्टेप बाय स्टेप जब हम इस टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे तो एक्सेप्शनल प्रिंसिपल्स 1 by 1 हम साथ साथ में पढ़ेंगे क्या है। तो 5 जनरल प्रिंसिपल्स है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के। मैं रिपीट करूंगा क्या क्या है।
The first principle fundamental reads like this: change the object of the active voice into subject of the passive voice. First principle. Principle number 2. Do not forget to write down these principles. Principles को साथ साथ में लिखते जाओ. Principle number 1. Change the object of the active voice into subject of the passive voice. यहां पे हमारे पास था a letter, फॉर एग्जाम्पल. अगर यहाँ पे a letter नाउन नहीं होता बल्कि एक प्रोनाउन होता, फॉर एग्जाम्पल हिम यहाँ पे होता. हिम, चलो इस रोड की जगह कोई और वर्ब ले लेते हैं, कोई भी वर्ब हो. ख्याल रहे कि अगर हमारे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट एक प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउन है ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि ऑब्जेक्ट के तौर पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही काम करते हैं. अगर यहाँ पे हिम है, एक प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसे सब्जेक्ट में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं? वी गो फॉर द सब्जेक्टिव केस ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. इस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस देखो क्या है. हिम जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है इसका सब्जेक्टिव केस ही है तो हिम ही में चेंज हो जाएगा. ख्याल रहे हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं लाइक आवर यू दे ही शीट, इनके ऑब्जेक्टिव केसेस हैं मी अस यू देम हिमारी, और इनकी पॉजिटिव केसेस भी हमारे पास हैं. फॉर एग्जांपल माय आवर यू देयर हिज हर इट्स. इन केसेस का पता होना भी जरूरी है. यानी जहां तक वॉइस का ताल्लुक है यू नीड टू नो अबाउट काइंड्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब की टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए. Second thing, you need to know about tenses. Tenses के बारे में पता होना चाहिए. And third and most important thing, you need to know about certain cases of pronouns. Pronouns के cases के बारे में भी पता होना चाहिए. खैर, मैं pronouns का टॉपिक लेने वाला हूं. I should have taken that prior to this. मुझे उसे इसे पहले लेना चाहिए था. अब मैंने ये टॉपिक ले लिया है क्योंकि मुझे कुछ रिक्वेस्ट्स मिली कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं. तो अदरवाइज मैं पहले प्रोनाउंस ही डिस्कस करता. फिलहाल ये कि प्रोनाउंस, चूंकि 11th-12th के लिए ये टॉपिक ऑलमोस्ट सबने पढ़े होंगे, तो प्रोनाउंस के केसेस आपको पता होने चाहिए कि ये ऑब्जेक्टिव केस है. अगर ये सब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट बनेगा, इस ऑब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा. हिम का सब्जेक्टिव केस ही है. तो सिमिलरली ऐसे ही आपको चेंज करने हैं वर्ब्स. ख्याल रहे ये जो सब्जेक्ट है इसे ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, सब्जेक्ट को अगर ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, इस सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना है. इस सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है फॉर एग्जाम्पल. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. तो प्रिंसिपल नंबर 1 मैंने कहा कि चेंज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इनटू सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस. ये जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है इसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाओ. प्रिंसिपल नंबर 1. प्रिंसिपल नंबर 2, यूज एन ऑक्सिलरी वर्ब. एक ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल कर लो. आई रिपीट, यूज एन ऑक्सिलरी वर्ब बट अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द एक्टिव वॉइस. लेकिन एक्टिव वॉइस के टेंस के मुताबिक. ये ऑक्सिलरी हमें घर से नहीं लाना. ऐसा नहीं कि कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं, इस टेंस के मुताबिक कोई मखसूस ऑक्सिलरी इस्तेमाल होगा. एक तो इस टेंस के मुताबिक, सेकंड अकॉर्डिंग टू द नंबर. इसके अलावा आपको देखना है नंबर भी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट का. मसलन यहां पे ये पास्ट सिंपल टेंस था, हम वाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ब भी. वाज और वर ये क्या है? दो दो क्यों, एक ही क्यों नहीं? वाज और वर इसलिए कि चलो ये पास्ट सिंपल है, इन दो में से एक. इसके बाद आपको देखना है ये जो सब्जेक्ट है आपके पैसिव वॉइस का, इसका नंबर क्या है. क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है तो ये वाला इस्तेमाल होगा, प्लूरल है तो ये वाला इस्तेमाल होगा. गर्ज ये कि प्रिंसिपल नंबर 2 ऑक्सिलरी के लिए आपको दो चीजें देखनी है. एक तो इस स्टेटमेंट का टेंस और उसके बाद पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट का नंबर कि ये सिंगुलर या प्लूरल है. ओके फाइन. तो हम will change the object of the active voice into subject of the passive voice. Second thing, we use an auxiliary verb. Third thing, we use third form of verb, V3. V3 आपको इस्तेमाल करना है, चाहे कोई भी verb हो, जो भी verb है उसकी थर्ड फॉर्म आपको इस्तेमाल करनी है. नेक्स्ट we use by. नेक्स्ट हम by इस्तेमाल करते हैं. And next important thing is we change the subject of the active voice into object. जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट में चेंज करो. तो ये 5 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है. यहीं पे मैं आपको एक और अहम बात बोल दूं कि ये जो स्टेटमेंट पैसिव वॉइस का बनेगा, हमने क्या किया है? वी हैव चेंज्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इनटू सब्जेक्ट. वी हैव यूज्ड एन ऑक्सिलरी वर्ब, वी हैव यूज्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ये जो बाय प्लस ऑब्जेक्ट है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. ये जरूरी नहीं है. आप इस पार्ट को ड्रॉप कर सकते हो, यहां पे फुल स्टॉप डालो. यानी ही प्लस ऑक्सिलरी प्लस V3. बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो है ये जरूरी नहीं है. ये क्यों जरूरी नहीं है? आप इसे ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन अब सवाल है कि आप इसे ड्रॉप क्यों कर सकते हो.
चलो पर्पस देखते हैं कि ये जो वॉइस हम चेंज करते हैं, एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं, क्यों करते हैं? कोई तो मकसद होगा, बिना मकसद के कुछ भी नहीं होता है। एक्टिव वॉइस को अगर पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, व्हाई डू वी चेंज, हम ऐसा ये चेंज क्यों करते हैं? ख्याल रहे एक्टिव वॉइस में, जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि जो हमारा एंटायर फोकस होता है वो एजेंट पे होता है, डूअर पे होता है, कि कौन कर रहा है काम, जो एक्शन हुई है वो एक्शन कौन कर रहा है। इसको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में क्यों चेंज करते हैं? एक्टिव वॉइस में ख्याल रहे हमारा एंटायर फोकस डूअर, एजेंट, सब्जेक्ट पे होता है कि परफॉर्मर कौन है एक्शन का, परफॉर्मर को जानना होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में, जहां तक पैसिव वॉइस का ख्याल ताल्लुक है, ख्याल रहे ये जो पैसिव वॉइस है, यहां पे हमारा एंटायर फोकस जो होता है एक्शन पे होता है कि एक्शन कौन सी परफॉर्म हुई है, रादर देन द एजेंट। एजेंट पे फोकस नहीं होता है, किस एजेंट पे? डूअर, जो हमारा डूअर है, जो हमारा परफॉर्मर है एक्शन का, उस पे फोकस नहीं होता है, तो उसकी जरूरत नहीं है हमें। अगर हमारा एंटायर फोकस एक्शन पे है तो इस डूअर, एजेंट, यानी जो एजेंट है, डूअर है, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन है, इसकी जरूरत नहीं है। अगर इसकी जरूरत नहीं है तो ये जो एजेंट हमारा होता है बाय प्लस ऑब्जेक्ट, जो हमें बोलता है कि एक्शन किसने की है, ये जरूरी नहीं है। इसलिए पैसिव वॉइस में से आप इसे ड्रॉप कर सकते हो। इससे पहले फुल स्टॉप डालो, स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लो। तो आज के पहले पार्ट में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लेंथी हो गया, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि बाद में रादर इम्पॉसिबल हो जाता है अपलोड करना, इट्स इनफ, विल बी बैक इंशाल्लाह विद पार्ट 2, विद सेकंड पार्ट, एंड विल प्रोसीड, हम इससे आगे जाएंगे। थैंक यू।